Assalamu alaikum students. Uh, Today we are doing the relations with India. So for the relations with India, yeah, Pakistan had relations with USA, and in fact it is having China, USSR, Bangladesh, Afghanistan, Iran, and obviously the India. ان کیمبرج سلیبس افغانستان کے ساتھ ریلیشنز ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں، یو ایس اے، یو ایس ایس آر، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ کنٹریز. ہر اس کے اوپر 14 مارک کی کویشچن جو ہے وہ آپ کو میں جو ہے وہ بنتی ہے. عموماً طور پہ اس پہ ایگزامنر جو ہے وہ کویشچن پوچھتے ہیں. سیکشن سی کا پارٹ ہے ہاؤ سکسیسفل ور دا ریلیشنز between Pakistan and India from 1950s till 1999. ہمارے سلیبس کی جو ریلیشنز کی لمٹ ہے وہ 47 سے لے کے 1999 تک ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پہلا پیراگراف 1950s کا، پھر 60s کا، پھر 70s and 80s and 1999 تک سٹاپ کرنی ہے آپ کو ایونٹس لا کے. تو ہر پیراگراف میں آپ نے جیسے بتانا ہے کہ whether relations sometimes relationships جو ہے وہ کولڈ ہو رہی ہے، sometimes ڈاؤن ہو رہی ہے، sometimes ریلیشن بوسٹ اپ ہو رہی ہے، sometimes ریلیشن گڈ گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے. مگر آج جو ہم کر رہے ہیں اور سکسیس اور فیلئرس میں تو وہی ایڈ ہوگا کہ ریلیشن اس سال سکسیسفل رہی، اس ایرا میں نہیں رہی. کیونکہ پاکستان کی منسٹریز جو ہم سٹارٹ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین، ملک غلام محمد، اسکندر مرزا، جنرل ایوب خان صاحب، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، جنرل مشرف تک ہماری ہیں. تو ان سب نے فورن پالیسیز پہ کام کیا. اب ہم اگر if we talk about today the relations with India، تو since 1947 India never wanted Pakistan to be on India never wanted Pakistan to be possible in any ways. کیونکہ پاکستان جو بنا with a lot of problems and every Indian government wanted کہ پاکستان will join back. The partition کی اتنی زیادہ پرابلمس کے ساتھ بنایا گیا تھا، جیسے کینال واٹر ڈسپیوٹ، کشمیر ایشو تو بعد میں ہوا، ریفیوجیز پرابلمس، آرمز اینڈ امونیشن کے مسئلے، فائنینشیل ڈسٹریبیوشن، جغرافیکل پرابلمس. It was a miracle that Pakistan survived because historians لکھتے ہیں اس بات کو کہ it was impossible and within a year Jinnah tried to solve the problems. Anyways جب پاکستان بنا تو ریلیشن انڈیا کے ساتھ گڈ گراؤنڈ پہ تھے ہی نہیں، اور وہ پرابلم سٹارٹ ہوئی ریفیوجی پرابلم سے، کیونکہ جس نے it took the life of thousand of people. اور پھر کینال واٹر ڈسپیوٹ پرابلم آ گئی، انڈیا ہیڈ ٹو کلوز دا واٹر، اور ملٹری فائنینشیل کی ڈسٹریبیوشن انفیئر ہو گئی. تو پاکستان had achieved the hard times only when کشمیر ایشو جب آیا، انڈیا اینڈ پاکستان فیس دا وار 1948. اس پوائنٹ پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ انڈیا نے جو آرمز اینڈ امونیشن دینی تھی وہ بھی بند کر دی کہ پاکستان is using into the war against the India. تو ہم آرمز اینڈ امونیشن نہیں دے رہے. 48 کے اندر جب یہ ہوئی تو اس میں یو این او، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے اس معاملے کو resolved کیا by arranging the ceasefire line. So since that time the relations were not developed on good ground. So in 1950s پاکستان نے مائنورٹی پیکٹ سائن کیا، جو کہ میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا کہ
लियाकत अली खान ने माइनॉरिटीज बगदाद पैक्ट साइन किया कि बोथ ऑफ द कंट्री, सॉरी नॉट द बगदाद पैक्ट, वो सीटो आ जाता है। माइनॉरिटीज पैक्ट, इसको लियाकत नेहरू पैक्ट भी कहते हैं कि अब वी आर क्लोजिंग द बॉर्डर्स। Pakistan also faced the Kashmir issue in UNO when they tried to integrate the occupied Kashmir, क्योंकि इंडिया ने ज़्यादा बड़ा कश्मीर ले लिया था। इनफैक्ट श्रीनगर वाला जो कैपिटल है कश्मीर का उसको भी ले गए थे 53-57 के अंदर। फिर कुछ हद तक relationships got better in 1960. The relation between India and Pakistan was improved because India signed the Indus Water Treaty and Pakistan and India faced the second war over 65 over the Kashmir, but Russia ने अयूब खान signed the war onto the table. रशिया ने पीस ट्रीटी अरेंज कर दी थी और पाकिस्तान ने यहाँ से हारना पड़ा। तो 1917 में इंडिया एंड पाकिस्तान वर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और फिर 71 के ऊपर कश्मीर वॉर हुई, रिलेशंस फिर स्पॉइल्ड हो गए क्योंकि इंडिया की इंटरफेरेंस थी ईस्ट पाकिस्तान इसमें। फिर जब भुट्टो की हुकूमत आई, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट दोबारा से बन गया क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को हमने ठिकाने लगा के बांग्लादेश बना दिया भाई, उसकी अनाउंसमेंट कर दी, हम अपने वापस पाकिस्तान आ गए और भुट्टो साहब की गवर्नमेंट यहाँ स्टार्ट हो गई। तो भुट्टो साहब ने सबसे पहले इंदिरा गांधी के साथ साइन किया सिमला एग्रीमेंट, जो आके फर्दर आगे इनकी बेटी भी जाके जो है 80s के ज़माने में 88 में वो साइन करती हैं राजीव गांधी से, ताकि इंडिया के अंदर रिलेशनशिप्स इम्प्रूव रहे इंडिया पाकिस्तान से। बट तो हमारे 93,000 पाकिस्तानीज आए इंडिया से, रिलेशंस फिर इंटेंस हो गए क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट कर ली थी राजस्थान ने। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि 1965 की जो वॉर है, वी हैड स्टार्टेड ऑन दिस 1962 की वॉर पे, जब इंडिया और चाइना की टेरिटोरियल इश्यूज थे सीज फायर का, तो उस एग्रेशन में रन ऑफ कच्छ के बॉर्डर से पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया के ऊपर और कश्मीर इशू पे जंग शुरू हुई। 71 में भी जब इंडिया ने इंटरवीन किया तो पाकिस्तान चाहता था कि इस मामले को कश्मीर इशू पे लेके आ जाए, मगर नहीं हो सका। तो इन 80 पाकिस्तान को ब्लेम किया गया कि पाकिस्तान जो है सिख सेपरेटिस्ट एलिमेंट को सपोर्ट कर रहा है, यानी खालिस्तान मूवमेंट को। इसमें पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ इंदिरा गांधी। इन पे जब अटैक हुआ 84 में सिचुएशन बड़ी वर्स हो गई, इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी राजस्थान में। 88 में फिर अटैक था, मगर ज़ियाउल हक साहब क्रिकेट मैच देखने गए थे जयपुर में, तो वहाँ से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रजनी गांधी के साथ द डेंजर वॉज रिमूव और इन स्टेबल कंडीशन जो है वो सही हो गई। वरना 88 में भी हमारे पास एक डर था कि हमारे जंग शुरू हो जाएगी। तो बाय 1990 द गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ रिलेशंस बेटर हुए, बस सर्विस स्टार्ट हुए इंडिया पाकिस्तान में, कुछ एग्रीमेंट साइन हुए। हाउएवर दोनों साइड में जब हम टेस्टिंग कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन की तो सिचुएशन वर्स्ट हो गई और फिर आखिरी में कारगिल वॉर ने सिचुएशन स्पॉइल कर दी, जब वो गुरिल्ला की वॉर्स में आपके पास चीज़ें हो गई थी। तो एनीवेज दिस वाज द रिलेशंस विद इंडिया। मैं एक बार इसकी टाइमलाइन आपसे थोड़ी सी शेयर कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम जो है जनाब वो रिलेशंस विद इंडिया में जो है हमने कहाँ तक क्या क्या किया, तो मैं उसकी टाइमलाइन आपके साथ शेयर कर दूं। तो वेरी सिंपली के 47 में हमने अटैक हुआ, 65 में हमारे पास अटैक हुआ, ये हमारे पास ये चीज़ यूँ रही। हमने फिर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर पर हम चले गए। फिर एक सेकंड बस मैं ये आपसे कनेक्शंस का वो लेके चलूँ। मेजर वॉर्स हमारे पास हुई थी 65, 71 एंड 1999।
The first war in 1965 जिसमें इंडिया ने स्टार्ट किया कैप्चर जम्मू कश्मीर. फिर इंडिया अटैक्ड द बॉर्डर्स लाइक लाहौर सियालकोट. फिर हमारे पास सेकेंड वॉर 71 में सिविल वॉर हुई थी. थर्ड वॉर जो है कारगिल वॉर हुई थी. जो टाइगर हिल हमारे पास था, कंट्रोल ऑफ होल कश्मीर. और मिनी वॉर्स थी इसमें, गोलाबारी बॉर्डर्स पे ऑन रूटीन के अंदर होती थी. तो it is not half controlled by Pakistan but majority is controlled by the India. और थोड़ा बहुत पाकिस्तान के पास है, जैसे मैंने बताया श्रीनगर में भी जो है वो उनके पास है. तो ये जो हम कुछ एक टाइमलाइन थी, मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर दूं. एक सेकेंड, मुझे थोड़ी सी yes, 38. This is the timeline. फोर्टी सेवन में पार्टीशन हुआ, जो मैंने आपको बताया अभी. रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स होते हैं 47 में. फिर डिवीजन ऑफ एसेट्स, फिर वाटर सप्लाई जनाब कट ऑफ हो जाती है. फिर कश्मीर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, सीज फायर लाइन अरेंज करते हैं. लियाकत अली खान नेहरू पैक्ट साइन किया जाता है. फिर 1954 में फ्रेंडशिप पैक्ट बिटवीन इंडिया चाइना होता है. 57 में कश्मीर वाज स्टेटेड एज अ डिस्प्यूटेड. 1960 में हम इंडस वाटर ट्रीटी साइन करते हैं. 62 में इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू होता है, जो कि मैंने आपको अभी ये देखे हैं. दिस इज इंडिया चाइना का. यहाँ से ये इशू होता है और इस पे पाकिस्तान इस आड़ के अंदर रन ऑफ कच्छ से 65 की वॉर शुरू करता है. फिर बांग्लादेश की वॉर होती है 71 में, जिसमें इंडिया इन्वॉल्व होता है और पाकिस्तान पे अटैक करता है. इंदिरा गांधी पीस ट्रीटी साइन करते हैं. 72 में सिमला एग्रीमेंट इंदिरा ने फिर साइन करते हैं ट्रीटी विद यूएसआर. कराची में न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट होता है. राजस्थान में टेस्ट होता है. फिर हमारे पास जनाब इंडिया क्लेम करता है कि पाक इंदिरा गांधी पे अटैक हुआ है, मिसेस गांधी को असैसिनेट किया जा रहा है. 84 के अंदर इंडिया के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट चलती है, वो भी इस पे पाकिस्तान पे ब्लेम किया जाता है. जब दोनों कंट्रीज में टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है 88 में, पाकिस्तान अनाउंस करता है कि वो 88 में न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टॉप कर रहा है. बेनज़ीर भुट्टो साहब रिलेशनशिप इम्प्रूव करती है, मगर 1999 में गोरिल्लास लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हैं. और फिर शरीफ परसुएड बाय क्लिंटन यूएस प्रेसिडेंट के पाकिस्तान अपने फोर्सेस को विड्रॉ करे लाइन ऑफ कंट्रोल से इंडियन टेरिटरी से, और वो नवाज शरीफ साफ करते भी हैं. तो दिस इज हाउ द कारगिल वॉर स्टार्ट. So this is about the relations of India. I have shared the 14 mark question as well. So kindly read me, listen to it, read the question, and do share if you face any sort of problem. Don't forget to read your book. Thank you very much.